بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، مہیلا کا ادھیکار ہم دیں گے دیجیے، کون منع کرتا ہے؟ ہم تو مخالفت نہیں کرتے، اسلام تو مخالفت ہی نہیں کرتا، اسلام تو ہر عورت کو بلکہ برابری کا حق دیا، برابری کا، ایکوالٹی۔ آپ نے تو 40 سال سے چھوڑ رکھا ہے گرو جی اپنے بیوی کو گجرات میں، حضرت عمر فاروق تو کہتے 3 مہینہ الگ نہیں رہ سکتے اپنے بیوی سے، نہیں، نراشن سمواجنم واجنی شیدیرم پوشنم سنمیریم ہے رتھم ن درگا دوسوا بدانو وشو سمانو اہنسو، اہنسو، وشو سمان پوری دنیا کو عزت دینے کے لیے، وشو سمانو کوئی اور ترجمہ ہے تو بتائیں مجھے، ممبر آف اناؤ ہوں گے تو وہ بدل دیں گے، وشو سمانوں کو کر دیں گے اہنسو کو، ہنسو نسبی پر تھا کہ ظلم کرو دنیا میں، بتایا بنایا۔ اب ایک عورت تھی، اس نے کہا کہ مسلمان جو اپنے نماز میں پڑھتے ہیں اللہ اکبر اور اذان میں پڑھتے ہیں کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ یہ مسلمان اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھکتی نہیں کرتے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے وفادار نہیں ہے، یعنی اس دیش کے بھی وفادار نہیں ہے یہ۔ انہوں نے ایک مطلب نکالا، ویڈیو آپ لوگوں نے سنا ہوگا دیکھا ہوگا کہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور مسلمانوں کے قرآن کے اندر ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، کہ جہاں پر بھی مشرکوں کو پاؤ قتل کر دو۔ یہ آیت ہے، کلیئر بتا رہا ہے کہ مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ لیکن اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کبھی پڑھا؟ اس کا پس پشت کیا ہے؟ کبھی پڑھا ہے؟ نہیں، بس پڑھا ایک دم نفرت بازی شروع کر دی۔ ہم تو پھر بھی ہم لوگ we are proud to be Muslim، ہمیں an organization an organized like that program and we are and I am very very proud to be of that to be a Muslim۔ ہمیں اس طرح کے پروگرام میں شریک ہونے اور اس طرح کے پروگرام آرگنائز کرتے ہوئے بڑا گرو ہوتا ہے، چونکہ ہندوستان کے اندر صرف اسلام کے پلیٹ فارم سے امن اور شانتی کی بات کی جاتی ہے اور اس طرح کے جلسوں سے محبت کی بات کی جاتی ہے، نفرت کو ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے، پیار کی، محبت کی بات کی جاتی ہے، امن اور شانتی کی بات کی جاتی ہے۔ ورنہ بہت سی کانفرنسیں ہوتی، سونو ڈانگر جب کھڑی ہوتی ہے تو وہ یہ کہتی ہے کہ مسلمانوں کا قرآن غلط ہے، ہم نے آج تک رگ وید کو غلط نہیں بتایا، آج تک میری تقریباً یہ 350 سے زیادہ ادھک اسپیچ ہے یہ آپ کے اس منچ پر، مجھے بہت زیادہ دن نہیں ہے، 3 سال ہوا ہے، اس میں شمار تو نہیں کر سکتا کیوں میں اس لائق نہیں، لیکن اساغر امت میں نام ضرور آتا ہے، اساغر دارالعلوم دیوبند میں نام میرا ضرور آتا ہے، لیکن میں یہی بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ صحیح بات کہاں کہاں پر رکھی گئی، اور ان میں سب سے زیادہ آگے میں قرآن کو رکھتا ہوں۔ کیوں؟ قرآن از اے گرانٹیڈ، قرآن از اے مصدق قرآن، قرآن کو نہ تو کوئی بدلا ہے، نہ کوئی بدل سکا ہے، نہ بدلے گا، اور آئندہ کتنوں زور لگا لیا جائے قرآن کبھی نہیں بدل سکتا۔ کیوں؟ 1450 سال پہلے جو قرآن نازل کیا گیا، جنگ آزادی کے موقع پر انگریزوں نے 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلائے، قرآن تب بھی نہیں مٹا۔ آج کچھ لوگ آئے ہیں، کچھ نمک مرچ بیچنے والے، کچھ ٹھیلا بیچنے والے، ٹھیلے پر چائے بسکٹ بیچنے والے، اور کچھ لوگ پھل بیچنے والے، اور کچھ لوگ آئے ہیں اپنی راجنیتی کو بیچنے کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے فرمان کو بدل دو، قرآن کے احکامات کو بدل دو۔ ارے آپ تو دور کی بات ہے، خود جو قرآن کے عالم ہیں، خود عبداللہ سالم قرآن کا حافظ ہے، I am a حافظ، I become حافظ and on 11 years old، 11 سال کی عمر میں حافظ بنا تھا۔ ہمارے جتنے بھی مفتیان کرام ہیں، قاضی حضرات ہیں، بلکہ خود نبی پاک علیہ السلام اپنے منشا سے، بلکہ جتنے بھی جسٹس آف اسلام ہیں دنیا کے اندر، سب مل کر بیٹھ کر اگر قرآن کے ایک نقطے کو بدلنا چاہیں تو کانٹ ڈو اٹ، وہ نہیں بدل سکتے۔ تم تو نوٹوں کو بدل سکتے ہو، 5000 2000، قرآن کو نہیں بدل سکتے، چونکہ قرآن اللہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی چیز، قرآن کو پڑھنے والے خود قرآن کو نہیں بدل سکتے۔ آج تک میں نے قرآن ویدوں کو غلط نہیں کہا، میں نے منتر پڑھا بھی ادے پشوستمو پری سنترام پادکو ہر، کہ عورت کو پردے میں رہنا چاہیے اور دھرم کی اچھائی کو لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ بات میں نے کہی، میں نے نہیں کہا کہ وید غلط ہے، ویدوں کو مت مانو، ہم نے تو یہی کہا کہ ویدوں کو مانو لیکن میرے قرآن کو بھی غلط مت کہو۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا جو قرآن تصدیق کرتا ہے وہی آپ کے ویدوں میں،
हम मुसलमानों का कसूर क्या? हम मुसलमानों के नाम से इतनी नफरत है कुछ लोगों को, क्या कसूर है? हम लोग एक अल्लाह को मानते हैं, एक अल्लाह की इबादत करते हैं, औरत को वो सम्मान देते हैं जो कुरान ने हमसे कहा है। तो आप लोग कहते हैं कि नहीं, मुसलमान मतलब दुश्मन, इस्लाम मतलब दुश्मनी। आज है एक साहब, रात को सपना देखते हैं, सुबह उठते हैं जगह के नाम बदलना शुरू कर देते हैं। किसी ने पूछा क्यों? कहते हैं कि ये इस्लाम की कल्चर है, इसीलिए हम इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखेंगे। इलाहाबाद का नाम क्यों बदला गया? क्योंकि उसका रियल नाम है अल्लाह आबाद। अल्लाह आबाद, ताकि अल्लाह आबाद तो मुसलमानी नाम है, बदलो। ठीक है, बदल दीजिए। एक नाम है मुगल सराय, बहुत फेमस नाम है, मुगल सराय, मुगल बादशाह का नाम, मुगल बादशाह। मुगल सराय, सराय मीन्स रहने की जगह। लेकिन हमारे हिंदू भाई बताइए, ठीक अच्छी बात है, अगर कोई रीजन हो बदलने की तो बदल दीजिए। नहीं, क्यों बदला? सिर्फ इस बेस पे कि ये नाम मुसलमानी नाम, मुगल सराय, इसलिए बदल दो, नाम रख दिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय। आज तक किसी मुसलमान ने इस पे उफ तक नहीं की, प्रोटेस्ट भी नहीं किया कि आप नाम क्यों बदले, हम आपका चक्का जाम कर देंगे। नहीं, आप हैं, अल्लाह ने आपको कुर्सी दी है, तो हम तो आपको यही सजेशन करेंगे कि तरक्की की बात कीजिए। गोरखपुर में जो 13 बच्चे ऑक्सीजन के बगैर मर गए, उनके ऊपर गौर कीजिए पहले। ऐसे वारदात ना, 2 बच्चियों का रेप किया गया विधायक के जरिए उत्तर प्रदेश के अंदर। पहले ऐसे लोगों को सुधारिए, तब बाद में नाम बदलिएगा। नाम तो अपनी जगह पर है, नाम से कोई मैटर हल नहीं होता, बल्कि असल में प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। 2 करोड़ नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको रोजी उनको नौकरी नहीं मिली, इसके ऊपर कोई बहस नहीं, इसके ऊपर कोई वो नहीं, फिक्र नहीं, चिंतन नहीं। नाम है, बस फिक्र है तो रातों को सपने देखे सुबह लिस्ट जारी किया, नाम बदल दीजिए। अब तैयारी चल रही है ताजमहल के नाम बदलने की। किसी ने पूछा क्या नाम रखेंगे? कहा ताजमहल ये तो मुसलमानी नाम है। कहा बनाया तो मुसलमान ने है, तो क्यों बदलेंगे? कहा वो बात तो है, लेकिन मुसलमान ने वहां पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, ये ताजमहल बना, इसीलिए हम अब उसका नाम रख देंगे रामा महल। हमारे हिंदू भाई हजम होने वाली बात है, ताजमहल 7वां अजूबा इन द वर्ल्ड, शाहजहां बादशाह ने बनवाया। पूरी तारीख ग्रांटेड है, तारीख बनाने का ही इतना शौक है तो तारीख रचो। तारीख मिटाने से तारीख नहीं बनाई जाती, इतिहास खुद ब खुद बनते हैं, इतिहास बिगाड़ कर इतिहास को वजूद में नहीं लाया जा सकता। जनाब, नाम बदलना है तो शाह, लफ्ज़ शाह मुसलमानी नाम है, अपने सदर साहब के नाम से भी हटा दीजिए। खैर, ये इस तरह की बात है जो दुश्मनी के आधार पर एकदम बिल्कुल डिपेंड करता है। वरना हमने आज तक श्री कृष्ण जी को हमने बुरा नहीं कहा, श्री रामचंद्र जी को आज तक हमने बुरा नहीं कहा, किसी मंत्र को हमने आज तक गलत नहीं कहा। तो ये कौन होती है सोनू डांगर जो हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत की बात करे और जो ये गलत मैसेज दे कि मुसलमानों के कुरान करीम के अंदर लिखा हुआ फख्तुल मुशरिकीन हैसु वजदतमुहुम, जहां मुशरिकीन को पाओ कत्ल करो। मैं बताना चाहता हूं मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, मेरे मुस्लिम भाइयों, आपको भी पता होना चाहिए तारीख के बारे में भी, आपके धर्म के बारे में भी। आप कहोगे कि अब्दुल्ला साहब क्या जरूरत है, व्हाट इज नीड टू एक्सप्लेन ऑन द हिस्टोरिकल थिंग एंड पैलेसेस, क्या जरूरत है तारीख के ऊपर रोशनी डालने की? एक बात याद रखिएगा, तारीख जिंदा रहता है तारीख को बयान करने से। अगर आप तारीख को भुला देंगे तो नामो निशान मिटा कर रख दिया जाता है। हिंदुस्तान की इस धरती पर आपका जो ये इस्लाम है, ये अकाबिरे उम्मत, ये अकाबिरे उलमाए दारुल देवबंद की खून को पानी की तरफ बहाने के नतीजे में आपके हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम जिंदा है। बार बार उन्होंने बोला, बार बार उन्होंने इसके ऊपर अमल किया, तब जाकर हिंदुस्तान के अंदर आज कुरान मौजूद है, आज इस्लाम मौजूद है। अगर आपने अपनी तारीख का जिक्र छोड़ दिया, आपने अपनी तारीख को बोलना छोड़ दिया, आज तारीख के ऊपर कोई बोलने वाला नहीं। यही वजह है कि ये ऐसी दकियानुसी ख्याल की औरतें जो हिंदू और मुस्लिम समाज के लिए ये रावण की तरह, जहरे हलाहल की तरह बनी बैठी है, ये फिरका परस्त लीडरों की तरह ये समाज के अंदर जहर की तरह काम करती है। जब तक सही तारीख पेश नहीं करोगे, सही माने मफहूम नहीं बताओगे, तो ये इसी तरीके से लोगों को वरगलाते रहेंगे कि ये मुसलमान हैं और इन मुसलमानों के अंदर जो तशद्दुद है इनके बाप दादों की वजह से है। मैं आज आपको बताऊंगा कि हिंदुस्तान की इस धरती पर सबसे पहले इस्लाम किधर से आया। जानते हैं आप? नहीं जानते। बहुत से लोग ये जानते होंगे कि हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम 19 हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम
89 यानी 90 कम 90 91 92 के बीच में वादी सिंध में मोहम्मद बिन कासिम सख्ती के जरिए तलवार के आधार पर आया। बहुत से लोगों को यही तारीख मालूम है, 95% लोगों को ये तारीख मालूम है। लेकिन मेरे मुस्लिम भाइयों, मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, मैंने रिसर्च किया अभी 1.5 महीना पहले जब मैं कलकत्ता वहाँ के एक रामा कृष्णा मिशन के अंदर जब मैंने एडमिट लिया अपना, और जब मैंने वहाँ पर रिसर्च शुरू की, जब मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले इस्लाम 90 हिजरी के अंदर वादी सिंध के जरिए नहीं आया था। इसी को बेस बनाते हैं आजकल के टकले लोग, आजकल के भगवाधारी लोग, आजकल के नफरत परस्त लोग, आजकल के फिरका परस्त लोग कि मोहम्मद बिन कासिम तलवारों के आधार पर इस्लाम का प्रचार हिंदुस्तान की पवित्र धरती पर किया। नहीं, मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, पूरी अमानत के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ, मैं जितना बड़ा अपने इस्लाम का फॉलोवर हूँ, मैं उतना ही सम्मान आपके हिंदुइज्म को भी पढ़ता हूँ और करता भी हूँ। जितना मैं कुरान पढ़ता हूँ उतना ही मैंने आपके ग्रंथों को पढ़ा है, और उतना ही आज भी मेरे पास एक मोबाइल, एक टैब रखा हुआ है, इसके अंदर 400 किताबें आप गिन सकते हैं। इस किताब, इस बुक के, इस टैब के अंदर 400 इस्लाम मोहम्मद बिन कासिम सख्ती तलवार के आधार पर नहीं आया, बल्कि आपको ये तारीख मालूम होना चाहिए। हिंदुस्तान की धरती पर 15 हिजरी के अंदर हजरत उमर फारूक के जमाने में सऊदी अरब से लोग आए थे। कहाँ? मालाबार, सरंदीप, लकादीप, कालीकट के अंदर, यानी केरला के अंदर इस्लाम सबसे पहले आया था। तिजारत के जरिए, ताजिरों के जरिए से आया था। और उस वक्त का बादशाह चीरानंद था। जब उसने देखा ये कौन लोग हैं जो नमाज पढ़ते, अरे ये कौन लोग हैं जो झूठ कभी नहीं बोलते, जो कभी भी दगाबाजी नहीं करते हैं, बल्कि अगर कोई चीज बेचते हैं, कोई कमी होती है तो फौरन लोगों को बताते हैं भैया इसकी कीमत इतनी होगी, इसके अंदर ये कमी कोताही है। उनकी इस दयानतदारी को देखकर, उनकी इस अमानतदारी को देखकर, उनकी इस अच्छाई को देखकर किसने पढ़ाया था ये सबक? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सबक पढ़ाया था। सहाबी की अमानत को देखकर, उनकी दयानत को देखकर, उनकी सदाकत को देखकर, उनकी ईमानदारी को देखकर राजा चीरानंद मजबूर हुआ, खुद से मजबूर हुआ। उसने कहा कि तुम लोग जो नमाज पढ़ते हो उसके लिए एक जगह बना दो। कहा बिल्कुल बना दीजिए। कहा उस जगह का क्या नाम दिया जाए? तो सहाबा ने कहा हम उस जगह को मस्जिद के नाम से ताबीर करते हैं। तो तारीख के अंदर ये बात लिखी हुई है, दुनिया के फिरका परस्त लीडरों, मस्जिदों को बड़ी बेरहमी के साथ ढाने वालों, मस्जिद मंदिर के नाम पर झगड़ा करवाने वालों, अगर तुम्हारा ज़मीर जिंदा है तो राजा चीरानंद की हिस्ट्री उठाकर देख लो। राजा चीरानंद हिंदुस्तान की सबसे पहली मस्जिद का अगर कोई बानी, पहली मस्जिद का अगर कोई मुतवल्ली है, पहली मस्जिद को अगर कोई बुनियाद डालता है, वो कोई मुसलमान नहीं है, बल्कि वो चीरानंद जो कि एक हिंदू बादशाह था जिसने केरला में मस्जिद बनाई। ये तारीख है हिंदुस्तान। राजा चीरानंद, आज भी कालीकट के अंदर वो मस्जिद मौजूद है मौलाना। आज भी जाइए, नेपाल में गया था, किसमें सैलाब के मौके पर केरला के अंदर उस मस्जिद में गया। आज भी फारसी के अंदर चीरानंद का बादशाह का नाम लिखा हुआ। ये अनपढ़ गवार लोग कुर्सी में बैठेंगे, ये नाम क्या है? फैजाबाद, बदलो इसको अयोध्या रखो। क्यों? मुसलमानी ना, बस यही। अरे ये मैटर नहीं है।